Good morning, all of you. Dear Good student, morning, sir. good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. As per your class, your topic is revision. By the discussion with you, we conclude that three topics will be discussed today as the compound interest and mensuration profit loss. As per possible, if all three topics will be discussed, then it will. The first is your as the compound interest. All of you saw about the okay, Ankit. All of you saw about the formula of the compound interest as CI and compound interest. In compound interest, first we see your worksheet 1 is based on the simple interest. Compound interest finding by the simple interest. Why simple interest is used in the compound interest? Because for 1 year, simple interest and compound interest both are the same. एक फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है 1 ईयर के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या सिंपल इंटरेस्ट निकालो इन बोथ केसेस आर द सेम वो केस सेम हो फॉर दिस व्हेन वी यूज द सिंपल इंटरेस्ट मेथड वी डिवाइड द टाइम एज 1 1 1 अगर 3 इयर्स है आप 3 टाइम्स आप उसको निकालते हो आफ्टर 3 टाइम्स द इंटरेस्ट व्हिच आर ऑब्टेन ऑल द 3 केसेस when added it give the compound interest अब now ये तो इंटरेस्ट हुआ अब है कि when we find out the simple interest what will be the change time is taken as 1 rate of interest is same but principal amount is changing how it changed the for first year that amount is obtained this amount will be considered as the principal for the second year principal for the second year and the amount on that principal we obtain for the second year this amount will be considered for the principal for the third year okay तो यहाँ मेन क्या चेंजेस आया प्रिंसिपल प्रत्येक केसेस में हमारा चेंज होता है फर्स्ट ईयर केस में सेकेंड ईयर केस में थर्ड ईयर केस ठीक है ये तो हमारा हुआ सिंपल इंटरेस्ट में when this will be concluded sorry will be obtained by using the unknown quantity it give a formula as amount equal to p into 1 plus r by 100 in bracket power t time period उसके पावर अच्छा तो बच्चे हमें बताएंगे इसमें कुछ छुटा भी हमारा जो जिसने बातें हमने बताए उसमें कुछ छुटा हुआ है कोई बच्चे हमने बताया No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. रिकॉल सारे No, बच्चे को sir. हो गया होगा हमारा Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट थिंग अब मैंने क्वार्टरली का आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्वार्टरली में क्या होता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट क्वार्टरली यानी प्रत्येक 3 मंथ्स पे इंटरेस्ट लगता है और इन ए ईयर दैट आर 12 मंथ 3 मंथ पे लगा 3 मंथ के रूप में ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है सो द टाइम पीरियड विल बी मल्टीप्लाई 4 ठीक है 4 से मल्टीप्लाई why interest rate of interest is divided by 4 because rate of interest is given always in per annum वो जो इंटरेस्ट जो दिया हुआ रहता है वो दिया हुआ रहता है per annum due to this interest is compounded quarterly that means after 3 months so the rate of interest be divided by 4 इसी कारण से उसको हम लोग 4 से डिवाइड similarly for when interest is compounded half yearly जब वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है दैट मींस हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया आफ्टर 6 मंथ और 6 मंथ पे हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड तो 12 ईयर को अगर 6 में देखें तो वो 2 पार्ट में होता है तो इसमें हम टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड अब हमें एक approximately your summary will be completed for the compound interest
योर फर्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे रेडी हैं पेन पेपर से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक बार sir. फेस तुम लोग का देख लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। तुम लोग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता है कि फुल तैयारी में आप लोग नहीं बैठते हो क्या क्लास के टाइम में? क्लास के टाइम में अगर मान लीजिए आप अच्छे से नहीं बैठते हैं, इसका मतलब इसलिए आप लोग वीडियो ऑन करने से बचते हैं। चलिए, पहला चेहरा मेरा अमन का निकला। वेरी गुड अमन। सक्षम आर्या। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग द क्लासेस नोट इन द वे। नित्यम, जागृत, सर मेरा वेलकम। चार्ज सर 10% चार्ज है, उसमें कैमरा खोलेंगे तो कर जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, नहीं बहुत बच्चे। अनुपम पांडे, वेलकम। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन एज find compound interest when principal is rupees 6,500, time period is 2 years, and rate of interest is 9% per annum. 9% per annum. Your first question. Today's first question is as सर पी क्या है, दोबारा बता दीजिएगा। सर रिपीट कर। repeat कर दे रहा हूँ। Principal is rupees 6,500. Time period is 2 years. Rate of interest is 9% per annum. इसमें दिया हुआ है find the compound interest on rupees 6,500 for 2 years at 9% per annum. आप फॉर्मूला का अगर यूज करोगे तो फॉर्मूला का यूज करके बनाओ। सारे बच्चे फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। और किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिलैक्स होकर के आराम से बनाइए। जब कॉपी शो करने का होगा उस समय शो। सर 6800 है ना? 6,500, 6500, 6500। सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। अगर हम सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, सीआई इज इक्वल टू पी into 1 plus r by 100 और p। किसी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक का अपना कंट्रोल कर लीजिए। अभिषेक, नित्यम, Sir, 1,222.65. यस। प्रिंसिपल हो गया आपका 6,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, टाइम पीरियड इज 2 माइनस 1। इसमें आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा। ये तो 9 से कटेगा नहीं, तो इसको सोल्व करके 109 स्क्वायर चला गया। चलिए, आप लोग तो बहुत तेज बनाए जी। सर आ गया। ओके Mouse के थ्रू बनाए थे इसलिए। यस। सर अमाउंट से बनाए थे इसलिए जल्दी बन गया। सर आ गया। अच्छा, 122,122.6। 109 का स्क्वायर कितना आया? 1,222.65
Sir, what one is one it eight for? eight one. 11,881. 11,881. 81. One. Okay. And 6,500. Five or 6,500 multiply 1881. यही ना आएगा by 10,000. Yes, sir. Cancel. ये पूरा कट जाता है No, sir. Sir, point में. No sir, point पे आंसर आएगा. पॉइंट में Point आता है में. क्योंकि यहाँ पे देख Sir, रहा हूँ 1222.65. यस यस 1,222.65. 1,222.65. नहीं कटेगा तो 100 को ऐसे ही छोड़ देता 1,222.65 500 1 2 2 0.65 कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल गया हमारा 1,12,222.65 विपाशा रुपीज का साइन चलिए सारे बच्चे का स्टेप एकदम एब्सोल्युटली राइट है अंकित डोंट वरी अप्रोक्सीमेटली आज यहाँ से है आपका कोई दिक्कत नहीं सारे बच्चे की कॉपी मेरे पास हो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप अब इसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट को क्या करता हूँ कंपाउंडेड कर देता हूं। ठीक है ओके धीरज आराम से सारे बच्चे बनाने में मत हिचकिए थोड़ा समय लगेगा लगने दीजिए आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन कहीं और से नहीं ले रहा हूँ आप ही के बुक से ले रहा हूँ वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन डिक्टेट कर दे रहे हैं पहले गलत है बेटा. Here, question number 2 is find the CI on rupees 15,625 at 16% per annum for 9 months when compounded quarterly. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में your principal is rupees 15,625. Rate of interest is 16% per annum. And time is your 9 months. And given here, interest
compounded quarterly. Interest compounded quarterly. सर फॉर्मूला द्वारा निकाल यस सर लॉन्ग प्रोसेस से निकालना है कि फॉर्मूला से? फार्मूला से आप चाहें तो अमाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, मतलब उसमें अभी फार्मूले का यूज 4%। सर CI 1951। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ना, तो इसमें जैसे लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने 4 से डिवाइड किया तो 4% पर क्वार्टर, ये लिखना जरूरी है। और टाइम इज 9 मंथ, दैट इज 9/12 ईयर। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के बाद आप डिवाइड करिए 4 से। 4 3 जा 12, 3 से 3 क्वार्टर ईयर, 3 क्वार्टर। किसी बच्चे को इसमें कुछ सुधार करवाना है तो बोलिएगा, ऐसा नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ वही सही हो। आप लोग के द्वारा भी कुछ इसमें आना चाहिए, कुछ एडिशनल चीज लाना चाह रहे हैं। आदित्य राज शुभ नारायण से बना रहे हैं। प्रिया 8D और 8H, आप लोग भी आइए जल्दी जल्दी। चलिए इसको आप बनाते हैं। हम भी आज अभी अमाउंट का यूज करते हैं। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। क्लियर है ना आप लोगों के पास? कोई बच्चे हमें इंश्योर कर दें। यस सर। Yes, sir. यस सर। 4 से कर जाएगा 25, तो सॉल्व करके लाएंगे तो आ जाएगा 15625 इंटू 26/20 का होल क्यूब। 26 का होल क्यूब कितना आ जाएगा? 17576। नादिया कैलकुलेशन अपने से कर रही है ना, कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। 17576। नो सर। हाँ, कोई बच्चे अभी कैलकुलेटर, ये नहीं कैलकुलेटर का मत यूज करिएगा। आपने अपने आप को देखिए कितना फास्ट आप तो करते सर हो। पीछे रहो। 25 का होल क्यूब हो जाएगा 15625। अमाउंट ये निकलेगा। अब CI निकालना हमें, क्या इक्वल टू A माइनस P। 17576 माइनस 15625 माइनस करके कितना आया है? 1951। 1951। जागृत, आदित्य राज, सुप्रिया, अंकित आनंद, अनन्या, आर्यन, 8D सलोनी, प्रिंस कुमार, शुभम कुमार, सिद्धांत, वैश्वी सागर, शाश्वत। ओके वेरी गुड। सक्षम आर्य, नाव्या, शुभ नारायण।
वंशराज, प्राची, शौर्या, ओके ओके, ऑल ऑफ यू रिलैक्स। अब एक चलते हैं हम लोग किस पे, हाफ ईयरली पे, और हाफ ईयरली वाले में क्वेश्चन नंबर 4 चलता हूं क्या, तो उसमें दोनों काम हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, लगता है कि आज एक ही टॉपिक हो पाएगा हमारा। तमन्ना, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 at 16% per annum for 6 months, compounded half yearly and quarterly respectively. Which option is better? ये आप लोग निकालेंगे। क्वेश्चन सर नंबर फिर 4। से रिपीट कर दीजिए। अब बुक नहीं खोले हुए क्या? नो सर। अच्छा No, ठीक, sir. नहीं है। अच्छा ठीक है, आप पहले No, लिख लीजिए। sir. अच्छा लिखिए, प्रिंसिपल लिखिए 25,000, 2530। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए 16% पर एनम। रेट कितना है? प्रिंसिपल 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम, टाइम इज 6 मंथ, टाइम को लीजिए 6 मंथ। और डिफरेंस निकालना है इसका, इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी कंपाउंडेड हो रहा है और क्वार्टरली रिस्पेक्टिवली। व्हिच ऑप्शन इज बेटर? जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग के थ्रू आ जाना चाहिए। साफ साफ बनाइएगा, हड़बड़ा के नहीं। सर हाफ ईयरली और क्वार्टरली है ना? हाँ, दोनों केस लेना है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों केस। ओके, प्रिंस का भी चल रहा है, प्रिंस कंप्लीट। आदित्य राज आ गए। चलिए, वेरी गुड आदित्य। वैश्वी सागर, सर क्वार्टरली बना रहे। ओके ओके वैश्वी। चलिए, बहुत सारे बच्चे आगे। नाव्या, शुभ नारायण, प्रिंस, आदित्य राज, तमन्ना। तमन्ना आपकी कॉपी देखें। तमन्ना कंप्लीट हो गया आपका? No, sir, करना है। तमन्ना क्वेश्चन कौन सा बना रही है बेटा? ओके, मैसेज अंकित आनंद। अंकित आनंद बेचारा बराबर कर रहा है, सर मेरा कैमरा विजिबल और नॉट। सर मेरा भी हो गया है। अंकित आप मेन स्क्रीन पे हैं। डिफरेंस अंकित निकाले।
डिफरेंस बचा हुआ है, आपके डिफरेंस को देख लीजिए। चलिए अब इसमें जो जैसे हमने अभी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली 3 ऑप्शन देख लिया। ओके, रिलैक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बचता है वह क्वेश्चन क्या है कि व्हेन टाइम पीरियड इंटरेस्ट अमाउंट एंड रेट इज गिवन, हाउ वी फाइंड आउट टाइम पीरियड। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी अमाउंट, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तीनों में से कुछ भी, 2 चीज दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट। एक क्वेश्चन उस पे कर ले, 4 क्वेश्चन हो जाएगा ना हमारा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, क्वेश्चन सुन लीजिएगा उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल। एट व्हाट रेट परसेंट will a sum of rupees 3,125 amount to rupees 3,640। अब यहाँ पे will a sum is your principal and amount to 3,645, this is your amount, यानी प्रिंसिपल कितना आपके पास हो गया। सर अमाउंट क्या है? Sir, time. अच्छा बता रहे amount क्या है? एक बार, Sir, प्रिंसिपल amount. Sir, time क्या है? 3,125, amount is your rupees 3,645 और टाइम इज योर 2 year, टाइम इज योर 2 year, टाइम आपका 2 year। तो इसमें निकालना क्या है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 पावर 3। यहाँ से पहले ही इसको हम लोग कर लें अमाउंट और p का रेशियो 1 प्लस r बाय 100 पावर 3 और इसको सॉल्व कर लें। कितना है 3,645 और 3,125 1 प्लस r बाय 100 पावर 2। अब 3,645 को कट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 से कट हो जाएगा 729। 3,645. So 729 by 625. हाँ 729 by 625। अब इसको कंपेयर करिएगा कि 625 किसका स्क्वायर है, नीचे वाले को कंपेयर करना आसान होता है। ये 25 का 25 का स्क्वायर। 25 से आगे 27. 5 से आगे चलना है, 25 जैसे का 5 स्क्वायर। के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 में के स्क्वायर में 9 लास्ट में आता है, अप्रोक्सीमेटली 27 का होगा। इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट कट करें। Sir, क्या R is बोले, equal to 8. आप उसके डिनोमिनेटर को केवल दे दीजिए किसका स्क्वायर है, उसके बाद उसके आगे। अब क्या है, कहाँ